بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیاض سے میرے بھائی ذوالفقار کی دوستی اس وقت ہوئی جب وہ چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ یہ دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ ذوالفقار نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی جبکہ چچا کبیر امیر آدمی تھے اور ان کا کاروبار روز بروز ترقی پر تھا۔ ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا جبکہ فیاض کے گھر میں بڑا سا رنگین ٹی وی تھا۔ ایک روز اس نے زلفی بھائی سے کہا، تم ہمارے گھر ڈرامہ دیکھنے آ جایا کرو۔ یوں بھیا کا ان کے یہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ فیاض کی بہن سمینہ سے میری اچھی دوستی تھی، لہٰذا جب بھائی جاتا وہ اس کی خاطر مدارت کرتی تھی۔ اس کی توجہ سے زلفی کی حوصلہ افزائی ہونے لگی اور ان کے گھر کا فرد بن گیا۔ اب وہ شدت سے رات کو ڈرامے کے وقت کا انتظار کرتا تھا اور جب وقت ہو جاتا تو فیاض اس کو بلانے آ جاتا۔ یوں سمینہ بھائی ذوالفقار کے دل میں اترتی ہی چلی گئی۔ ایک دن فیاض نے بھائی کو کہا کہ میرا ٹیپ ریکارڈر خراب ہو گیا ہے۔ اس نے مستری کو دیا مگر اس نے کچھ دن رکھ کے واپس کر دیا کہ میرے بس کا نہیں۔ میرے والد صاحب تھوڑا بہت مشینری کا کام جانتے تھے، تبھی بھیا نے کہا ٹیپ مجھے دے دو، میں اپنے والد سے ٹھیک کروا کے دے دیتا ہوں۔ اس نے ٹیپ زلفی کو دے دیا۔ والد صاحب نے بہت کوشش کی کہ ٹیپ ٹھیک ہو جائے مگر ٹیپ ریکارڈر کی خرابی دیر تک نہ ٹھیک ہو سکی۔ تب بھائی نے ایک اچھا مستری ڈھونڈ لیا۔ اس نے 200 روپے لے کے ٹیپ ریکارڈر کو ٹھیک کر دیا۔ یہ رقم میرے بھائی نے انتہائی غربت میں اپنی جیب سے ادا کی تاکہ اس کا دوست خوش ہو جائے۔ وہ ٹیپ لے کے گھر آیا۔ یہ اچھا چل رہا تھا اور بھائی کا دل باغ باغ تھا کہ چلو میرے دوست کی چیز صحیح ہو گئی۔ جس دن فیاض ہمارے ہاں ٹیپ لینے آیا، اتفاق سے اس دن چلتا ہوا ٹیپ پھر خراب ہو گیا۔ اب بھائی پریشان ہوا کہ اس کا دوست کیا سوچے گا کہ میں نے اتنے دن ٹیپ رکھا اور بنوا کر بھی نہیں دیا۔ خیر فیاض ٹیپ لے کر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد جب میرا بھائی اس کے گھر گیا، اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ اس نے ذوالفقار سے کہا کہ تم دوستی کے نام پر دھبا ہو، تم ایک فراڈ انسان ہو، تم نے میرے ریکارڈر سے قیمتی چیزیں نکال لی ہیں، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اسے فیاض سے ایسی امید نہ تھی۔ یہ سن کے اس کے پیروں تلے سے ہی زمین نکل گئی تھی۔ اس نے دوستی ہی نہیں کی بلکہ ہماری غربت کی بھی توہین کی تھی۔ یہ تو ہو سکتا تھا کہ اس ٹیپ کی چیزیں مستری نے بدل لی ہوں یا پہلے والے مستری نے بدلی ہوں۔ بہرحال فیاض کے دل میں میل آ چکا تھا، لیکن اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ پورے ٹیپ کی رقم مانگتا تب بھی اس کو مل جاتی۔ کاش وہ میرے بھائی پہ چوری کا الزام نہ لگاتا، کیونکہ اس بات سے نہ صرف ان کی دوستی ختم ہو گئی بلکہ ذوالفقار کے دل کو بے حد دھچکا لگا۔ یہ غریب ضرور تھا مگر اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے دوست اور اس کی بہن سے فراڈ کرتا۔ سمینہ اس کے بعد مجھ سے جدا ہو گئی۔ وہ میری سہیلی تھی، میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی، وہ نہ ملی۔ پتہ نہیں وہ بھی ہم لوگوں کو فراڈ سمجھنے لگی تھی۔ اس واقعے کے بعد میرے بھائی میں بہت تبدیلی آ گئی۔ وہ سخت چڑچڑا اور بد مزاج ہو گیا۔ پڑھائی سے بھی اس کی توجہ ہٹ گئی۔ اس کو سمینہ کے بدلے ہوئے رویے کا بھی دکھ تھا۔ جو پہلے اس کو اتنی اہمیت اور عزت دیتی تھی، بعد میں نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ جہاں میرے بھائی کو دیکھتی منہ دوسری طرف پھیر لیتی تھی۔ یہاں تک بھی گوارا تھا مگر فیاض نے اس کے بعد کینہ پال لیا۔ اگر زلفی گلی سے گزر رہا ہوتا تو وہ دوستوں کو اشارے سے بتاتا کہ دیکھو وہ جا رہا ہے چور۔ محلے کے لڑکے بھی آوازیں کسنے لگے، جہاں دیکھتے چور چور کی صدا لگانے لگتے۔ یوں انہوں نے زلفی کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ والد صاحب کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے چچا جان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے ہمارا گھر شہر سے دور ایک وادی میں تھا اور اکثر برف باری کی وجہ سے 4-5 ماہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے یہ گھر فروخت کر دیا اور شہر میں خرید لیا۔ والد صاحب نے زلفی سے کہا بیٹا کل اسکول سے اپنا سرٹیفکیٹ لے آنا۔ یہ ایک اور صدمہ تھا کیونکہ وہاں شینہ بھی پڑھتی تھی جس کے ساتھ بھائی کی منگنی ہونے والی تھی۔ یہ ہمارے دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی اور تیسری جماعت سے ساتھ پڑھتی تھی۔ چھوٹی عمر سے یہ ساتھ کھیلے اور ساتھ پڑھے تھے۔ ذوالفقار نے اسکول جا کر استاد سے کہا مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ دے دیں کیونکہ ہم شہر جا رہے ہیں۔ انہوں نے دے دیا۔ وہ اسکول سے نکل رہا تھا تب شینہ آئی اور کہا ذوالفقار کیوں جا رہے ہو؟ والد صاحب نے شہر میں مکان خرید لیا ہے، اس نے بتایا۔ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بولی جب واپس آؤ گے تو مجھے اسی جگہ پاؤ گے۔
एक और बोझ दिल पर लेके वो घर आया। फिर हम 1 हफ्ते बाद शहर आ गए। शायद शीना इसके दिल में गहराई की हद तक बस चुकी थी, मगर इस अमर का भी इसको कोई अदराक न था। शहर आकर इसने स्कूल में दाखिला ले लिया, मगर वहाँ पढ़ने में दिल न लगा। अब्बू के कहने पे चला जाता था। एक रोज़ वहाँ भी फयाज किसी दोस्त से मिलने आ गया। इससे लड़कों को कहा, ये चोर है, ज़रा इससे बच के रहना। एक लड़के ने ये बात मेरे भाई को बताई, जिसके बाद इसका दिल ऐसा ज़ख्मी हुआ, इसने स्कूल को खैराबाद कह दिया। वालिद साहब ने लाख समझाया, कोशिश की वो किसी तरह पढ़ ले, मगर 9वीं जमात में भाई ने स्कूल छोड़ा, फिर इधर का रुख न किया। तब अब्बू ने दुकान खोली और छोटी सी उम्र में जुल्फ़ी को वहाँ बिठा दिया। पहले तो इसको दुकान पे बैठने में खासी दुश्वारी महसूस हुई, क्योंकि दिन भर बैठना पड़ता था। बाद में वो इसका आदी हो गया और बगैर किसी जहमत के वहाँ सारा दिन बैठने लगा। जब रुपया हाथ में आता है तो मिजाज बदलने लगते हैं। मायूस दिल इंसान रवैये से खुशियाँ खरीद कर अपने दुख भुलाने की कोशिश करता है। जब जुल्फ़ी के पास पैसा आ गया, सब कुछ भूल गया। वो गलत दोस्तों में उठने बैठने लगा। यूँ ये लोग इसको गलत रास्ते पे ले गए। वालिद साहब को पता न था कि इनका बेटा दुकान बंद करके रात को कहाँ चला जाता है। एक दिन भैया की मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई और वो शायद ज़ख्मी हो गए। जब होश आया, वो अस्पताल में था। वालिद और वालिदा के अलावा और भी बहुत से रिश्तेदार अयादत को वहाँ जमा थे। भाई ने आंखें खोल के इनको देखा तो बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो मामू, खालू, चचा सबको भुला चुका था। इनके घर जाना तो दूर की बात है, अगर रास्ते में वो मिल जाते तो सलाम भी ना करता था। मुझसे कहा, बहना, शायद ये अल्लाह की तरफ से मुझको सबक सिखाने के लिए हादसा हुआ है। ये गरूर का नतीजा है। इसने सबसे माफ़ी मांगी और शुक्रगुजारी का इजहार किया। इंसान की अजीब फितरत है कि बुरे दिनों में अपने अल्लाह को याद करता है, मगर अच्छे दिनों में भूल जाता है। जो वो ठीक होकर दुकान पे गया तो रफ्ता रफ्ता गलत दोस्त फिर पास आने लगे और वो दोबारा इसी रास्ते पे रमा दमा हो गया। काफ़ी दिन इन बुराइयों में ज़िंदगी गंवाता रहा, यहाँ तक कि थाने में इसके खिलाफ रिपोर्टें दर्ज होने लगी। लेकिन वो इस बात को महज मजाक समझता रहा। आखिरकार एक दिन पुलिस वाले आए, इसको पकड़ के ले गए। उन्होंने भाई के साथ थाने में बुरा सलूक किया। इसके बाद इसके दिमाग के कुल पुर्जे हिल के रह गए। जब थाने से घर आया तो बहुत बदल चुका था। इसने फैसला कर लिया कि दुकान पे बैठना छोड़ देगा। ये एक और गलती से सरजद हो गई। वो काम और मेहनत से जी चुराने लगा। वालिद साहब ने इसकी जगह छोटे भाई को, खालिद को दुकान पर बिठा दिया। चंद दिनों बाद जब इसको रकम की ज़रूरत हुई तो वालिद ने इस वक्त तो जुल्फ़ी को रकम दे दी, मगर साथ कह दिया कि आइंदा इस तरह नहीं चलेगा, तुम खुद कमाओगे, खुद खाओगे। वो चंद दिन बाद छोटे भाई के पास दुकान पे गया और रकम का तकाजा किया। इससे रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि वालिद साहब की इजाज़त के बगैर मैं दुकान से एक पैसा भी नहीं दूंगा। जुल्फ़िकार ने बिल्कुल नया पेशा इख्तियार कर लिया। दुकान में वो चोरी करने लगा। फिर ऐसी चोरी की आदत पड़ गई कि दूसरी जगहों पे भी चोरियां करने लगा। लोगों ने कई बार पकड़ने की कोशिश की और वालिद साहब ने भी शिकायत की तो उन्होंने जुल्फ़ी को घर से निकाल दिया। ये वालिद साहब की गलती थी। इनको भैया को संभालना चाहिए था, बजाय संभालने के इसको और इसके हाल पे छोड़ दिया। अपनों का सहारा छूट जाए तो लामुहाला गैरों पे तकिया करना पड़ता है। ऐसे ही वक्त में बदकमाश अच्छे ख़ानदान और इनके भटके हुए लड़कों को घेर लेते हैं, इन्हें बुराइयों की दुनिया में ले जाते हैं। यही मेरे भैया के साथ हुआ। जो ही वो घर बदर हुआ, गलत लोगों ने इसकी रहनुमाइयाँ शुरू कर दी और यूँ इसने बुराइयाँ इख्तियार कर लीं। वो शरीफ और सीधे साधे लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के रुपया हासिल कर लेता, किसी को लूट लेता, बकरियाँ, गंदम को चोरी करना, फिर इन पैसों से शराब पीना, नशा करना, गर्ज हर तरह की बुराइयां करना शुरू कर दी। वालिदा बेटे के बारे में सुनती तो कुड़ती और वालिद नफ़रत का इजहार करते, मगर जुल्फ़ी को वापस लाने की कोशिश उन्होंने नहीं की। वक्त गुजरता रहा, किसी को होश न आया। जुल्फ़ी किसी रास्ते पे चलता जा रहा है। बस सब अफसोस करते और मायूसी का इजहार करते कि किस राह पे ये निकल पड़ा है, कि अब ये भला कहाँ ठीक होगा। ये भी साथ में कह देते कि हमारे हाथों से तो निकल चुका है।
वक्त के साथ साथ वो इस हाल को पहुंचा कि एक रोज़ इश्तिहारी मुजरिम बन गया। किसी को यकीन ना आता था ये वही लड़का है जो कभी शराफत का पीकर था, जिसको पढ़ाई से इश्क था। अब ये सब इसका नाम लेने की बजाय इश्तिहारी कहते थे। जुल्फी पुलिस के डर से जंगलों में मारा मारा फिरता था। एक दिन पुलिस को मुखबरी हुई कि इश्तिहारी मुजरिम इस इलाके में है। पुलिस ने पीछा किया। वो छुपता छुपाता रात के अंधेरे में एक दरवाजे पे पहुंच गया। दस्तक दी तो एक औरत बाहर आई। इसने अंदर आने की इजाज़त तलब की। औरत ने कहा, बेटा मुसीबत ज़दा लगते हो, अंदर आ जाओ। भाई जब अंदर गया, बूढ़ी औरत ने सवाल किया, तुम कौन हो? इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? भाई और इसके दोनों साथियों ने जवाब दिया कि हम सौदागर हैं और थक गए हैं, सुबह सफ़र करेंगे, इस वक्त आराम से सोना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई सामान नहीं है। सामान बेच के तो आ रहे हैं, रकम साथ है, इसीलिए रात के वक्त जंगल का सफ़र मुनासिब नहीं है। हमको यहाँ आराम करने दो या फिर रकम रख लो, हम बाद में आकर ले जाएंगे। औरत ने इनकी बात का यकीन कर लिया और कहा, मैं आपकी रकम नहीं रख सकती, अलबत्ता आराम से यहाँ सो जाओ, सुबह चले जाना। इस वक्त सर्दी बहुत थी। बूढ़ी इनको कमरे में बिठा कर चली गई। इनको नींद नहीं आई। आपस में सलाह मशवरा करने लगे और बूढ़ी सो गई। क्यों ना इसके घर से कुछ कीमती अशिया लेकर जाएं। उठ भी गई तो ये हमारा क्या कर लेगी, कमज़ोर सी औरत है, हम इसका मुंह बांध देंगे। भाई कमरे में रहा, बाकी साथी घर की तलाशी लेने लगे। तभी बूढ़ी की आंख खुल गई। वो उठकर आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो? इससे पहले ये इसको पकड़ के खामोश करते, कमरे से खूबसूरत लड़की बरामद हुई। ये शीना थी जो अपनी दादी के घर आई हुई थी। जब भाई ने इसको देखा तो होश उड़ गए। सारी चोरी डकैती भूल गया। जब शीना ने पुकारा, जुल्फ़िकार ये तुम हो? तो भाई की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कह रही थी, कितनी मुद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अब आए हो, वो भी इतनी रात गए, और तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? इतने में एक साथी बोल पड़ा, चुप रहो, बकवास बंद करो, हम यहाँ तुमसे मिलने नहीं डाका डालने आए हैं। ये सुनते ही वो सख्त नाराज़ हुई। जुल्फ़िकार भाई को होश आया, मैं इतने बरसों बाद कहाँ आ गया। शीना को एक नज़र देखते ही जैसे इसकी दुनिया बदल गई। इसने बहुत मुश्किल से साथियों को डाका मारने से रोका, लेकिन शीना बददस्तूर इससे नाराज़ थी। इसने कहा, बस अब मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया, तुम डाकू बन गए हो, मेरा तुमसे कोई वास्ता बाकी नहीं रहा। भाई ने कसम खाई, मैं आज के बाद कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, मेरी तौबा, मैंने हर बुराई छोड़ दी है। ऐसी बात है तो सुनो, अगर तुमने मुझे अपनाना चाहते हो तो जल्दी से मेरा रिश्ता मेरे वालिद के पास भेजो, वरना वो मेरी शादी कहीं और करने वाले हैं। अगर तुमने देर कर दी तो फिर मेरी शक्ल दोबारा न देख सकोगे। भाई घर आया, अब्बू के कदमों में गिर गया, मुआफ़ी तलब की, तौबा की, बुराइयों का रास्ता छोड़ देने का वादा किया, यकीन दिलाया, हर तरह से गिड़गिड़ाया। तब वालिद साहब ने माफ़ किया और साथ चलने पे आमादा हुए। वालिद साहब भाई की बात करने के लिए शीना के वालिद के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा नशई है और डाके डालता है, हम कैसे बेटी का रिश्ता दे दें? तुम ज़रा सोचो तो सही, अगर तुम बेटी के बाप होते तो क्या ऐसा करते? क्या ऐसे इंसान को जो इश्तिहारी हो, बुराइयों में गर्क हो, कोई अपनी बेटी का हाथ दे सकता है? बात तो उनकी सही थी। वालिद साहब ना उम्मीद वापस आ गए और जुल्फ़िकार से कहा कि तुमने मुझे बहुत बेइज्जत कराया। तुम ना चोर चक्के बनते और ना मुझे किसी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनने पड़ते। मैं तो डॉक्टर्स, इंजीनियर, फौजी, ऑफिसर का बाप कहलवाने के ख्वाब देखा करता था, मगर अब चोर, डाकू और इश्तिहारी का बाप कहलाता हूँ। काश खुदा मुझे ये दिन दिखाने से कब मौत दे देता। भाई का दिल टूट गया और फिर गलत काम करने लगा। वो नशे की दुनिया में वापस लौट गया और फिर एक दिन नशे की हालत में शीना के वालिद के पास पहुंचा और बोला, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे कबूल कर लें। शीना के वालिद को भाई की इस हरकत पे बेहद गुस्सा आया। उन्होंने इनकार ही नहीं किया बल्कि मार मार के लहूलुहान कर दिया। यही नहीं, गांव के लोगों को बुला के मेरे वीर की खूब पिटाई कराई। फिर इन लोगों ने जुल्फ़ी को पुलिस के हवाले कर दिया। भाई जेल में था। वालिद साहब को अम्मी ने कहा, वो जैसा भी है हमारा बेटा है। एक दौलतमंद के लड़के ने तौहीन करके इसको इस हाल तक पहुंचा दिया, वरना पहले ये ऐसा ना था। तुम बाप हो, अगर इसको पहले की तरह छोड़ दिया तो वो मज़ीद बुराई की दलदल में फंस जाएगा।
अम्मी ने कहा हम ही हाथ थाम को इसको दलदल से निकाल सकते हैं। वालिद साहब इस बार अम्मी जान की आहजारी का उन पर असर हो गया। एक इनके वाकिफ़कार डीएसपी थे, ये इनके पास गए और भाई की रिहाई का इंतज़ाम कराया। वो बेटे को घर ले आए और प्यार मोहब्बत से समझाया तो भाई वालिद साहब के गले लग गया। बहुत रोया और कहा मैं तौबा पर कायम हूँ, कभी बुराई के रास्ते पे ना जाऊँगा, क्योंकि बुराई के रास्ते पे चलने की वजह से मुझको बहुत बड़ी सज़ा मिल गई है। शीना मुझसे जुदा हो गई है हमेशा के लिए, अब मैं इसको कभी ना अपना सकूँगा। वही नहीं, सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। वालिद साहब ने बेटे को दिल से लगा के कहा कि कोई नफ़रत नहीं करेगा, मगर हम तुमसे नफ़रत नहीं करते, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। वालिद साहब एक बार फिर बेटे की खातिर शीना के वालिद के पास गए, मगर वहाँ से साफ इनकार हो गया। उन्होंने कहा मैं नशा करने वाले लड़के को बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। क्यों दूँ? ताकि मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो जाए। इसके बाद शीना की शादी किसी और जगह हो गई। मेरे भाई को इसकी करतूतों की सज़ा मिली। वो बहुत गमज़दा था, मगर इस दुख से समझौता करना पड़ा। ये और बात है, वो आज तक शीना को ना भुला सका। जुल्फ़ी ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है। वो पहले जैसा नेक और अच्छा इंसान बन गया है। 5 वक्त इबादत करता है, तिलावत कुरान पाक इसका रोज़ाना का मामूल है। इसको इबादत करने में सुकून मिलता है। मैं तवक्को करती हूँ कि मेरे भाई की ज़िंदगी के हालात पढ़कर अगर कोई फ़याज़ जैसा इंसान होगा तो वो ख़ुद को सुधार लेगा, और कोई मेरे भाई जैसा होगा तो वो भी ख़ुद को संवारेगा, वरना बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है, चाहे बुराई की राह इख्तियार करने वाला इंसान कितना ही अच्छा ही क्यों ना हो।